लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था हमने? व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? एनीवन? कोई बता दो मुझे, लास्ट टॉपिक क्या किया था? आई रिमेम्बर हम लोग ग्राफ्स कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स, है ना? लास्ट ग्राफ क्या किसका किया था हमने? आर्या, अब कोई बता दो एक मुझे, व्हाट वी डिड द लास्ट ग्राफ? Am I audible to all? Can you hear me, everyone? Yes, sir, you're audible. Oh. I want all the students to revert to what sir is saying. Did you hear me? Just say yes, no. You have to unmute and speak. So continue. Yeah. Fine. What was the last graph that we have discussed? I guess we are dealing with the trigonometric graphs, right? Which Yes, sir. one? Last one? Yes, sir. Last graph कौन सा था? Yes, Abha? 2 cos 8. Acha, cos was the last. Okay. Fine. Now, in the trigonometric graphs, we have deal with the sine graph and cosine graph. Now we'll be dealing with the tan graph. Heading लिख दो. So we'll be plotting with the graph of y is equal to tan x. So y here is a dependent variable and x here is in the independent variable. So इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे tan x का. We are assuming that this axis is my x, है ना? ये x dash, ये y axis, and this becomes y dash. Plotting the lines like this. This is my pi by. What is the meaning of term pi by 2? If I say pi by 2 का मतलब क्या है? What angle is this in degrees? अगर आप आई एम सेइंग कि मेरा एंगल पाई बाई 2 है, तो पहले तो ये पाई बाई 2 एंगल जो मैं मेजर कर रहा हूँ, किस में? इज इट इन रेडियंस की डिग्री? ये जो एंगल है पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 रेडियंस में है या डिग्री में है? So radius. Yeah. So if I'll be converting this pi by 2 from radian to degree, what it will be? कितना डिग्री होगा? If it is pi by 2 radians, then how much degree will it be? 180 degree. 180 degree. Okay. Students, revise properly. जो पिछला लेक्चर होता है उसको continuously revise करो, वरना you are not going to gain anything. Pi by 2 implies what? Pi stands for 180 degree, and by 2 that means it is 90 degree here, right? Last lecture में हमने discuss किया था ना, pi radians is equivalent to 180 degree, and if I am saying pi by 2 radians implies 180 degree by 2, which is what? 90 degree. So if it is pi by 2 radians, implies that this angle is 90 degree, है ना? Keep revising. So this is pi. This is 3 pi by 2. What is this 3 pi by 2? How much angle is this? If I'm saying it is 3 pi by 2, 3 pi by 2 का मतलब क्या है? कितना एंगल होगा ये? 270. Yes, correct. It's 270 degree.
Good. This is 2 pi here, and again here if you're plotting, से करेंगे हम लोग. 270 degree. Correct. This one is 2 pi plus pi by 2 implies this is 5 pi by 2, and it is 5 pi by 2. The lastly we'll plot this way. My suggestion is कि जो पिछला टॉपिक होता है उसको आप लोग completely रिवाइज करो. Make proper notes of the subject. नोट्स नहीं बनाओगे और प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग. अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा. राइट. एंड राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द वेरी बेसिक पार्ट्स ऑफ द फिजिक्स. ओके. हियर माय एंगल इज माइनस पाई बाय 2. व्हाट इज द मीनिंग कि मैं एंगल्स को अगर अब माइनस में मेजर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? If I am measuring angles in negative, so angles को negative में measure करने का मतलब क्या है? What is the meaning of this term? देखो आप ध्यान से, इधर मैंने angles को positive में measure किया. Here we are measuring the angle in negative. Negative में angle को measure करने का मतलब क्या है? Yes. All this we did in the last lecture. कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं मैं. Clockwise direction में measure. Correct. और वेरी गुड निकिता. कन्वेंशनली हम एंगल्स को किधर की तरफ मेजर करते हैं? कन्वेंशनली जो हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है, वो कन्वेंशनली एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है? सर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. So if we measure angle in anti-clockwise direction, will it be taken positive ki negative? Positive. Positive. And if we are measuring angle in clockwise direction, then that angle will be taken as what? Negative. Negative. So negative angle का मतलब ये होता है कि we are measuring angle from in positive direction. किधर से positive? Sorry, clockwise direction में. कहाँ से clockwise measure करते हैं हम? Positive direction of x axis से कि negative direction of x axis से? The angle which we are measuring in clockwise direction, we measure clockwise from where? From the positive direction of x axis or the negative direction of x axis? Sir positive direction of x axis. Correct. We measure them from positive direction of x axis. Now this is the graph of tan x. I am plotting the rough sketch of tan x. And so on. So it will keep on moving like this. ऐसे move करता जाएगा. And so on. Right? So this is the rough sketch. We are interested only up to 2 pi. This is the rough sketch of y is equal to tan x. मैंने आपको पहले ही बताया, we are interested in the rough plot. Exact plot की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें ग्राफ का नेचर मालूम होना चाहिए. So y is equal to tan x ग्राफ का ये ऐसा नेचर होता है. Now you tell me बेटा ये कौन सा quadrant है? Which quadrant is this from here to here? First. First quadrant. Great. So this is my first quadrant. Okay. If it is first quadrant, तो इस quadrant में tan का जो value है, is it positive की negative for this quadrant? Positive. 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 Okay, fine. So इस quadrant में tan is holding a positive value. Great. Okay. क्योंकि यहाँ पे आप देखो इस x axis के ऊपर है, और अगर ये x axis के ऊपर implies कि ये quadrant में tan positive है. Now from pi by 2 to pi, which quadrant is this? Pi by 2 से लेकर pi तक? Second. Second. Yes, great. Okay. In second quadrant, tan
सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या मिल रहा है आपको? आर यू गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan की नेगेटिव वैल्यू ऑफ tan? Negative. Negative. Very good. Super. Now from pi to 3 pi by 2, which quadrant is this? Third. Third. Yes, correct. So this is third quadrant. Okay. So in third quadrant, what we are getting? Tan Positive. positive. Yes, super. So now see, first quadrant tan is positive. Second quadrant tan is negative. Third quadrant tan is positive. And which quadrant is this from 3 pi by 2 to 2 pi? Fourth. Correct. So in fourth quadrant, are we having the value of tan as positive ki negative in fourth quadrant? Negative. Correct. So tan here we are getting what? Negative. So मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ गया that in first quadrant and in third quadrant tan holds positive value, whereas in second quadrant and fourth quadrant tan is having negative value. So this is the rough plot of y is equal to tan x. Agreed everyone? Clear है सभी को यहाँ तक point? Yes, sir. Okay, fine. Pranav, Sarthak, Yuvraj, is it clear? All of Yes, you? sir. Fine. Yes, sir. Okay. अब अगर मैं आपसे ऐसे बोल रहा, if I'm saying so कि tan theta we are having as 2, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? tan theta can be 2. मैंने फिजिक्स का कैलकुलेशन किया और फिजिक्स के कैलकुलेशन करने के बाद आई एम गेटिंग tan theta equal to 2. So if after doing calculation of physics I am getting tan theta equal to 2, so whether I am getting the right value or wrong value? Right. Right. It can be 2. Correct. Okay. Now by doing the calculation, if I am getting tan theta as 0.5, am I getting the right value or wrong value? You analyze this. Analyze करके बोलिए. अगर मुझे tan theta का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद if I am getting 0.5, so Wrong. कैलकुलेशन करने के बाद अगर मुझे tan theta 0.5 मिल रहा है, so I am getting it right or wrong? Wrong. Right बेटा. अब देखो ये ग्राफ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है. It is moving from 0 till infinity. So from 0 till infinity, any values can be correct for tan. It can be 0.5, 1, 2.5, 3.5, 4.5. ये ग्राफ continuous जा रहा है ना? Right? So as you can see from the graph that tan is going from 0 to plus infinity and from 0 to minus infinity. So any values between 0 to infinity is possible for tan. tan के लिए 0 से लेकर infinity के बीच के कोई भी values possible रहेंगे. Whether it is less than 1 or more than 1, both is correct. Am I clear, everyone? Yes, sir. है ना? That you can see from the graph itself. इसके लिए बाहर से सोचने की जरूरत नहीं है. अब ग्राफ से देखो. cos का ग्राफ और sin का ग्राफ अगर आपको याद हो तो वो 1 और -1 के बीच में ही था. 1 के ऊपर और -1 के नीचे ग्राफ था ही नहीं. So cos and sin cannot have the value which is greater than 1 or less than -1. That was the case for cosine graph and sine graph. Now for the tan graph, as we can see that tan graph moves from 0 till infinity. So any values from 0 till infinity is possible for tan. कोई भी वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर infinity के बीच में tan के लिए. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Fine. This is so any values is correct for tan. Plot the graph, then we'll move to the next one. फटाफट complete करेंगे. Done with the plot? Sir, 1 minute. Okay. Done, sir. Fine. So I'll move ahead.
Next plot will be y is equal to cosec x. 3 more plottings are remaining. Y is equal to cosec x. Today's lecture will be very important. So आप लोग ध्यान से समझना, मैं slow जाऊंगा. Y is equal to cosec x. Cosec x can be written as what? 1 by 1 sin x. upon sec x. 1 upon sec x. Cosec x is 1 upon sin x. 1 upon cos x is sec x. Right? याद करो हमने पहले डिस्कस किया था ये बातें. So we'll have a plot of this. Cosec x का मुझे प्लॉटिंग चाहिए. For reference के लिए हम लोग क्या करेंगे? We'll make the plotting of sin x. So reference के लिए हम लोग sin x का प्लॉटिंग पहले कर लेते हैं. Right? So this stands to be 1. और इसके नीचे का ये जो लाइन है, this is by -1 here. So this is -1. So अगर आपको याद हो, so this was the plot of sin x. And so on, it will move forward. ऐसा ही कुछ sin x का प्लॉट था. Right? For reference purpose, I'll be plotting a vertical line from here. जो भी ग्राफ में मैं डॉटेड लाइन प्लॉट कर रहा हूं, दिस डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ. So dotted line जो भी मैंने प्लॉट किया, this dotted line is not the part of graph. Remember this. Like this. इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं हम लोग. So for this civic line plot कर लेते हैं. Okay, fine. This is my x-axis. This is my x dash. This becomes my y-axis, and this is my y dash. Right? Now, what angle is this, beta? ये कौन सा angle है? Is it pi? This is my pi by 2. Pi हो गया. This is my 3 pi by 2. This is what? Is 2 pi. This is ये क्या है? This is 5 pi by 2. And this is 3 pi, and so on. In the same manner, if we'll be plotting here, so this is my minus pi by 2. Here it is minus pi. Minus 3 pi by 2. Here it is minus 2 pi. Minus 5 pi by 2. Minus 3 pi, and so on. ऐसा ही होगा ना? सिर्फ हमने एंगल्स प्लॉट कर लिया. Pi by 2 is what? 90 degree. Pi is 180 degree. 3 pi by 2 is 270. 2 pi is 360. 5 pi by 2, and उसी तरीके से आप 90 डिग्री और ऐड करते चलो. राइट? सो अगर आप cosec x का ग्राफ देखोगे, सो cosec x का ग्राफ इज द ऑपोजिट टू द ग्राफ ऑफ sin x. सो sin x का ग्राफ वी नो, मैं ऑलरेडी रेफरेंस के लिए प्लॉट कर दिया. अभी आप sin x के ग्राफ को रिवर्स कर दोगे. So this will become the graph of cosec x.
एनालाइज दिस। ये ग्राफ था मेरा साइनिक्स के ग्राफ को मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। सो अगर आप साइनिक्स के ग्राफ को रिवर्स कर दोगे देन यू आर गोइंग टू गेट द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। इन द सेम फैशन यहाँ पे मेरा साइनिक्स का ग्राफ ऐसा है, हम ये साइनिक्स के ग्राफ को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ये ग्राफ मेरा कॉसेक एक्स का हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। हम इस ग्राफ को रिवर्स कर देंगे। इन द सेम मैनर दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। This here again we are reversing this graph. So इस ग्राफ को हम वापस एक बार क्या करेंगे बेटा, रिवर्स कर देंगे। This is here. So this becomes the graph of cosec x. Got the graph? Yes, sir. सिर्फ हमें करना क्या है, अभी लॉजिक से समझोगे आप तो बहुत आसान लगेगा। आपको करना क्या है, यू कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ sin x फॉर द रेफरेंस। आप sin x का ग्राफ रेफरेंस के लिए प्लॉट कर लो, और sin x के ग्राफ को आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, बिकॉज cosec x is 1 by sin x. So you just reverse the graph of sin x. So after reversing the graph of sin x, we'll be getting the graph of cosec x. Is it clear, everyone? Fine. Now you see one thing. एक बात आप मुझे सोच के बताइए इस केस में. Now which quadrant is this from 0 to pi by 2? Which quadrant is this? First. First quadrant. Okay. Now if it is first quadrant, आप आराम से चेक करके मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cosec x का वैल्यू आ रहा है मुझे, ये cosec x का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, am I getting the positive value की negative value of cosec x? Positive. Positive. Correct. So first quadrant में cosec x का वैल्यू जो मुझे मिल रहा है, that I am getting is positive. Okay. Now which quadrant is this from pi by 2 to pi? Second. Second quadrant. है ना? So this is my second quadrant. Okay, great. अच्छा, आप मुझे खुद बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो cosec x का वैल्यू मुझे मिल रहा है, am I getting that positive की negative? Positive. Positive. Right. So here also we are getting what? Cosec value as positive. Okay. Now the angle is from pi to 3 pi by 2. This is Third. थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? So, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है। इन थर्ड क्वाड्रेंट cosec x क्या मिल रहा है मुझे? Am I getting the positive की negative in the third quadrant? Negative. Negative. Yes, correct. And this stands to be the fourth quadrant. हाँ, cosec positive negative fourth quadrant. Negative. Negative. Yes, correct. Negative. सब लोग रिस्पॉन्ड करोगे आराम। देखो, द फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डिस्कस विथ मी, है ना? अगर आप फिजिक्स को डिस्कस नहीं करोगे, लॉट ऑफ फैकल्टीज डू नॉट प्रीफर फॉर डिस्कशन, बट आई टीच इन द डिफरेंट वे। मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। आई वांट द डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट। आप मेरे साथ डिस्कस करो, आर्ग्यूमेंट करो, और आर्ग्यूमेंट में ही, डिस्कशन में ही आपको समझेगा कॉन्सेप्ट। सो माय सजेशन इज कि आप पिछला सब टॉपिक याद रिवाइज करके रखो, जो क्वेश्चंस दे रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड यू डिस्कस विथ मी विद द लॉजिक। अब जितना डिस्कस करोगे कॉन्सेप्चुअली उतना ही स्ट्रांग होते जाओगे, और जितना कॉन्सेप्ट अच्छा होगा उतना मजा आएगा सब्जेक्ट को पढ़ने में, है ना? इसको बर्डन नहीं बनाओ, इसको एंजॉय करो। और एंजॉय कब करोगे? जब आप खुद से रिसर्च करोगे। एक बार जब आप रिसर्च करने लगोगे ना, आपको ये सब्जेक्ट में अपने आप मजा आने लगेगा। ओके, यू टेल मी वन थिंग, cosec x, मैंने फिजिक्स का कैलकुलेशन किया, और फिजिक्स का कैलकुलेशन करने के बाद आई एम गेटिंग cosec x as 0.5. Am I getting the right result ki wrong result?
Wrong. हाँ, वाई बेटा, क्यों रॉन्ग? Sir, because 1 से ऊपर है ना ग्राफ. बराबर, कॉसेक एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आ ही नहीं सकता। कॉसेक एक्स हमेशा 1 से ज्यादा होगा या -1 से कम होगा। कॉसेक एक्स का वैल्यू इस रेंज में 1 और -1 के बीच में नहीं आता। सो अगर आपने फिजिक्स का कैलकुलेशन किया है और फिजिक्स के कैलकुलेशन में अगर आपको कॉसेक एक्स का वैल्यू 0.5 या लेस देन 1 आ रहा है, इंप्लाइज कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, कुछ ना कुछ गलती किया है, राइट? एंड दैट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ कि कॉसेक एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा या -1 से कम आएगा। 1 और -1 के बीच में कॉसेक एक्स कैन नॉट होल्ड एनी वैल्यू। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, फाइन, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, सार्थक, अब क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? Yes, sir. ओके, सार्थक, Yes, sir. फाइन। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से आपको दिख रहा है कि कॉसेक एक्स 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकता। कॉसेक एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन -1। इट कांट होल्ड एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। प्लॉट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, डन हो गया प्लॉट करके सभी का? हाँ, sir. ओके, फाइन। नम्रता, निकिता, प्राजक्ता, क्लियर है बेटा? हो गया प्लॉटिंग करके? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। अच्छा, मैं आपको अगर होमवर्क दे दूं सेक एक्स और कॉट एक्स का, खुद से प्लॉट करके देखोगे? सेक एक्स विल बी द रिवर्स ऑफ कॉस एक्स और tan एक्स का भी वैसे ही एडजस्ट करके होता है। कर पाओगे एक पर प्लॉटिंग आप? हाँ, अब दिशा, जैसे मैंने कॉसेक एक्स का किया था सेम वे में सेक एक्स का भी होता है। विल यू बी एबल टू प्लॉट दैट? सो मैं ये 2 ग्राफ होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, आप लोग ट्राई करना। नहीं होगा अगले लेक्चर में मैं आई विल डू द बोथ प्लॉटिंग, लेकिन एक बार पहले खुद से फाइट मारो एंड डोंट सी फ्रॉम नेट। इंटरनेट से देखना नहीं, ग्राफ को कहीं से देखना नहीं। होमवर्क इज दैट प्लॉट द ग्राफ ऑफ sec x एंड cot x। सो ये 2 ग्राफ मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने cosec x का प्लॉटिंग बता दिया है। cosec x इज 1 by sin x और वो हमने किया। सेम वे में sec x होता है 1 by cos x, तो यहाँ से ये प्लॉटिंग होगा और cot x का भी वैसे ही होता है, आप सोच के देखना, राइट? सो ये जो 2 प्लॉटिंग है sec x का और cot x का, दिस इज फॉर होमवर्क, आप लोग ट्राई करोगे इसको। दिशा, इज इट क्लियर व्हाट आई हैव सेड? समझ में आया सभी को व्हाट आई एम सेइंग? कि sec x का प्लॉटिंग और cot x का प्लॉटिंग यू विल डू बाय योरसेल्फ। जैसे मैंने cos x का प्लॉटिंग करके बताया था, डिट्टो उसी वे में sec x का प्लॉटिंग होगा। sec x विल बी 1 by cos x। cos x का ग्राफ आपको मालूम है, उसका रिवर्स कर देना तो sec x का ग्राफ बन जाएगा। एंड सेम विल डू फॉर cot x। सो एक बार आप ट्राई करो, बन गया तो अच्छी बात, नहीं बनेगा देन विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ओके, फाइन, फाइट मारो एक बार। चलो हेडिंग दे दो, डिस्कशन ऑन स्लोप। डिस्कशन ऑन स्लोप। अब यहां से आपका एक्चुअली इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल क्लियर स्टार्ट हो रहा है। डिस्कशन ऑन स्लोप। व्हाट इज स्लोप बेटा? स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है?
बोलो, जो समझ में आता है ना बोलो। tan tan थीटा। ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, एंड दिस इज एनी लाइन हियर। सो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कोई जरूरी है क्या कि x एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा और y एक्सिस हमेशा वर्टिकल होगा? no नो सर। ऐसा कोई जरूरी है क्या कि x एक्सिस एक लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और दूसरा लाइन हमेशा वर्टिकल होना चाहिए फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? नो No. सर। जरूरी क्या है? अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इसकी दो लाइंस के बीच का एंगल इट विल नॉट चेंज, इट शुड बी ऑलवेज 90 डिग्री, है ना? दो लाइन के बीच का एंगल चेंज नहीं करना चाहिए, वो 90 से कम ज्यादा नहीं होगा, वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। यही कंडीशन था ना कार्टेशियन के लिए। yes ओके, अब मुझे एक बात बताइए, ये जो लाइन है, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया थीटा, जब इसी एंगल थीटा का जब हम टैन लेते हैं, tangent लेते हैं, then that is called slope. That is called slope, right? So how we define slope? Slope को हम define कैसे करते हैं? तो we say कि slope is the angle made by line from positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. लाइन ने जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया है, अगर आप उस एंगल का टेंजेंट लोगे यू विल बी गेटिंग स्लोप। यस और नो? ऐसा ही होगा ना? स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो मेरा लाइन था बेटा, ये लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, इफ आई एम टेकिंग द टेंजेंट ऑफ दिस एंगल tan थीटा अगर आप लोगे, देन दैट विल बी कॉल्ड स्लोप। और स्लोप को हम रेफरेंस से m से डिनोट करते हैं। दिस वी डिस्कस ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन डिस्कशन। यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब मुझे एक बात बता बेटा कि अगर ये लाइन जो एंगल फॉर्म कर रहा था थीटा, अगर ये एंगल मेरा एक्यूट एंगल होता, इफ दिस एंगल इज एक्यूट एंगल, उस केस में स्लोप मेरा पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता? Positive. पॉजिटिव। स्लोप मेरा पॉजिटिव होता। और अगर ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इफ दिस लाइन इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल, अगर ये लाइन ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता, सो अगर आप ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता तो स्लोप इस केस में क्या होता? Negative. नेगेटिव। ग्रेट, सुपर। अब जरा देखिए, इतना बात मुझे इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? सो स्लोप इज बेसिकली द एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसका अगर आप tan लोगे विल बी गेटिंग स्लोप। अगर एंगल एक्यूट एंगल बना स्लोप पॉजिटिव होगा, और अगर एंगल ऑब्ट्यूज बना स्लोप नेगेटिव होगा, राइट? एक काम करो आप, यू प्लॉट अ परपेंडिकुलर हियर। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देता हूं लाइक दिस, एंड आई एम नेमिंग दिस एज OA एंड B। मैं इसका नाम दे देता हूं OA एंड B फॉर दिस ट्रायंगल, राइट? सो अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करूं इन ट्रायंगल OA एंड B, नाउ व्हाट इज tan थीटा हियर? आपको सब कुछ पता है भी, बताइए tan थीटा कितना होगा इस केस में अगर हम इस ट्रायंगल में कॉन्सेंट्रेट करें तो? 45 दिया नहीं ना बेटा, थीटा दिया है। इज इट परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा? So can I say that tan theta is what? AB by OB, Yes, sir. right? Tan theta is what? AB by OB. Tan theta is nothing but that is equal to perpendicular by base. So perpendicular यहाँ पे AB हो गया और base हमारा यहाँ पे is OB. Now can I write कि ये जो मेरा AB है, what this AB is indicating? ये AB मुझे क्या बता रहा है? Is it indicating the change in Y? क्या ये delta Y represent कर रहा है? Delta stands for change. So this is what? Change in Y.
ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये जो डिफरेंस लाइन का लेंथ होगा ये मुझे चेंज इन y बता रहा है, और चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द टर्म डेल्टा. डेल्टा इंप्लाइज चेंज एंड लार्जर चेंज. इज इट क्लियर? Yes. हाँ, सो यहाँ पे ये जो ए बी हुआ, ये ए बी क्या बता रहा है मुझे? दिस इज सेइंग अस द चेंज इन वाई. अभी ये जो ओ बी है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओबी जरा सोच के बताए. ओबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Change in X. वेरी गुड. सो कैन आई, इफ इट इज, हाँ, सो इफ इट इज इंडिकेटिंग चेंज इन एक्स, तो अगर ये चेंज इन एक्स बता रहा है, सो कैन आई राइट दिस एज डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स सिंपली मीन्स व्हाट? दिस इज चेंज इन एक्स. एग्री कर रहे हो सब लोग? ओबी इज माय change in x and ab is my change in y. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, so आप यहाँ पे लिख दीजिए. So can I say that tan theta is delta y by delta x, and this is equal to m, and that is called what? Slope. Tan theta will be equal to what? Delta y by delta x, change in y by change in x, and that is equal to m, and that is equal to what? Slope. Agreed? समझ के बोलना, क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे. Yes. Okay. Yes. Now, अगर ये टर्म मेरा डेल्टा y, if it is indicating change in y, और ये जो टर्म है डेल्टा x, if it is indicating change in x, तो can I say, क्या मैं बोल सकता हूँ that tan theta is equal to y final minus y initial over x final minus x initial? क्योंकि भाई ये चेंज बता रहा है ना, इट इज सेइंग चेंज. चेंज का मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल. सो tan theta is equal to y final minus y initial. This will give us change in y over x final minus x initial. This will give us change in x. So can we write this? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? tan theta simply indicates what? Change in y by change in x. अब देखो यहाँ पे, so tan theta is change in y by change in x. ये y में चेंज है डिवाइडेड बाय x में चेंज है. y में चेंज होने का मतलब क्या है कि भैया फाइनल y जो था उसमें से आप इनिशियल y को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको y में चेंज मिलेगा. इन द सेम मैनर अगर मैं आपसे x में चेंज पूछ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? x फाइनल में से x इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको x में चेंज मिल जाएगा. सो tan theta simply is y final minus y initial over x final minus x initial. Agreed? होगा ऐसा? So repeat once again. Yeah, one second. What I said is, फाइनल आप चेंज कैसे निकालते हो भाई? आप ऐसे सीखो. अगर मैं ये लाइन पे चल रहा हूँ, मान लो ये लाइन पे चल रहे हैं, ये मेरा इनिशियल वैल्यू है x का और ये मेरा फाइनल वैल्यू है x का. x में चेंज यही होगा ना, डेल्टा x. Yes. ये चेंज कैसे निकालोगे? अगर आप फाइनल में से x फाइनल में से अगर आप x इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आपको चेंज इन x मिल जाएगा? Yes. Okay, exactly in the same manner, if I'm interested in calculating the change in y, so what I have to do कि आप y फाइनल में से y इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको y में चेंज मिल जाएगा. अगर आप x फाइनल में से x इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको x में चेंज मिल जाएगा. Yes. ग्रेट. अब दिस आर क्लियर है बेटा सभी को ये पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं सर. अच्छा कोई बात नहीं. देखो, मान लो आपके पास इनिशियली x 5 था, मान लेते हैं मेरे पास इनिशियली x 5 था, फाइनली x चेंज होके 7 हो गया मेरे पास. तो मुझे बताओ x में कितना चेंज आया? आप क्या करोगे? विल यू डू 7 minus 5, और ये जो आपका x में चेंज होगा ये दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2, है ना. मेरे पास x पहले 5 था, बाद में मेरे पास x 7 हो गया, तो x में कितना चेंज हो गया? इज इट 7 minus 5 which is 2? x का चेंज है ना. तो डेल्टा x जो x का चेंज आप लिख रहे हो ये आपका 7 minus 5 हो गया, और 7 क्या है? द फाइनल वैल्यू ऑफ x, और 5 क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ x. सो क्या मैं x के फाइनल वैल्यू में से x के इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे x में चेंज मिलेगा?
हाँ सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप डेल्टा एक्स बोल रहे हो, डेल्टा एक्स का मतलब हो गया चेंज इन एक्स, इंप्लाइज कि आप एक्स के फाइनल वैल्यू में से एक्स के इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको एक्स में चेंज मिलेगा। इन द सेम मैनर आप y के फाइनल वैल्यू में से y के इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको y में चेंज मिलेगा। अब क्लियर है बेटा अभी हाँ पॉइंट? सर, अभी समझा। ओके, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके ग्रेट। अब जरा देखो, यहां तक मेरा पॉइंट क्लियर समझ में आया सभी को? यहां तक बातें ढंग से? Yes, sir. ओके, सो आई विल रीप्लॉट दिस, जरा लॉजिक से समझना इसको एंड अप्लाई द लॉजिक। जब तक क्लियर नहीं होगा विल नॉट मूव फॉरवर्ड। आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन ओनली, सो मैं स्ट्रेट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। बाद में मैं आपको किसी भी रफ कर्व ग्राफ पे बात करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, राइट। वी नो कि जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज स्लोप। सो ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल फॉर्म कर रहा है, ये स्लोप है मेरा थीटा। सो अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट किया, दिस बिकम्स माय ओ ए एंड बी। सो tan थीटा इज ए बी बाय ओ बी, or we can write that tan theta is equal to delta y by delta x. This is my delta y and this is my delta x, है ना। अब जरा एक काम करो, ये वाले लाइन को इमेजिन करो कि आई कैन पुल दिस लाइन। सो अगर आप ये काम करो, इस लाइन को आप पुल करके आगे लेके आ जाओ, खींच के आगे लेके आ जाओ। सो अगर मैं ये लाइन को पुल करके यहाँ लेके आ जा रहा हूँ, तो इमेजिन करते कि अभी ये लाइन यहाँ आ गया। सो दिस a became now a dash and b became now b dash, राइट। सो मैंने इसी लाइन को, द सेम लाइन, आई हैव पुल्ड दिस लाइन, और ये लाइन को पुल करके मैं यहां लेकर आ रहा हूं, सच दैट दिस इज बिकमिंग a dash एंड दिस बिकम b dash। a चेंज होके a dash हो गया और b चेंज होके b dash हो गया। सो क्या अभी भी मैं इस केस में, दिस वाज माय डेल्टा y एंड दिस कंप्लीट वाज माय डेल्टा x। सो कैन आई राइट नाउ से दिस कि tan थीटा will be equal to a dash b dash by ob dash? बोल सकते हैं? द सेम थिंग वी आर डूइंग। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ये वाले लाइन को खींचा है, पुल किया है, और इस लाइन को पुल करके मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूं। सो अगर आप ये लाइन को पुल करके यहाँ पे लेके आ रहा हो, दिस a became a dash now, b became b dash now. So can I say in this triangle, छोटे वाले ट्रायंगल में, that tan theta is equal to a dash b dash by ob dash? बोल सकते हैं हम लोग? सार्थक, अब कैन वी से दिस बेटा? अगर आप वो छोटे ट्रायंगल में कंसंट्रेट करोगे, इन ट्रायंगल ओ ए डैश एंड बी डैश, सो कैन आई से कि tan थीटा विल बी इक्वल टू a डैश b डैश बाय o b डैश? यस सर। ओके, अब मुझे आप बताइए सोच के, ये जो y में अब चेंज है, ये y का अब का चेंज पहले के चेंज से कम है कि ज्यादा है? इन दिस केस द चेंज इन y इज स्मॉल कि लार्ज? डायग्राम देखो ना, यहाँ पे मेरा y में चेंज ये था और यहाँ पे y में चेंज ये है। सो y में चेंज जो अब हो रहा है वो पहले के रिस्पेक्ट में चेंज कम है कि ज्यादा है? हाँ दिशा बोलो, चेंज कम है कि नहीं? राइट। अगर मैं इसको ऑल पुल करके इधर लेके जाऊं, y में चेंज और कम हो। देखो यहाँ पे y का चेंज के लिए लाइन इतना बड़ा था, यहाँ पे लाइन इतना छोटा सा है। अगर मैं इसको और आगे शिफ्ट करूंगा, लाइन और छोटा होता जाएगा। इंप्लाइज कि हियर जो मुझे y में चेंज मिल रहा है वो y में चेंज छोटा है ना दिशा? y में चेंज छोटा है कि नहीं बेटा? यस सर। ओके, नाउ अगर ये y का चेंज छोटा है, इंस्टेड ऑफ डेल्टा वी रिप्रेजेंट दिस बाय dy। dy इंडिकेट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये बहुत छोटे चेंज को इंडिकेट कर रहा है। डेल्टा इंडिकेट्स द लार्जर चेंज, डेल्टा में हम बड़े चेंज पे बात करते हैं। राइट नाउ अगर मेरा y का चेंज छोटा है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा वी राइट इट बाय d, हम उसको d से इंडिकेट करते हैं।
राइट। अब मुझे आप खुद सोच के बताओ कि यहाँ पे जो मुझे x में चेंज मिल रहा है, यहाँ पे जो मुझे x में चेंज मिल रहा है, ये x में चेंज छोटा है या बड़ा है? छोटा। छोटा है। सो x में चेंज अगर छोटा है, सो वी रिप्रेजेंट दिस बाय dx। ध्यान रखना, अगर चेंज बड़ा था वी रिप्रेजेंटेड दैट बाय डेल्टा, लेकिन अगर चेंज छोटा है देन वी रिप्रेजेंट दैट बाय d। मैंने क्या किया है, द सेम लाइन AB, मैं उस AB लाइन को पुल करके आगे लेके गया हूं। I have just pulled this line in this direction. So अभी ये जो AB लाइन का लेंथ इतना बड़ा था, now the length decreased to this much, ये लेंथ हो गया लाइन का। So इस ट्रायंगल में अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, इन ट्रायंगल O A डैश B डैश, ये छोटे वाले ट्रायंगल में, so tan theta will be equal to A dash B dash by OB dash, and A dash B dash is the small change in y and OB dash is a small change in x. So therefore we can say कि tan theta को हम क्या लिख सकते हैं, can we write that tan theta is equal to dy by dx? सब तुम्हारे सामने, can we write this tan theta as dy by dx? Yes. Okay, great. अब ये जो dy by dx है, this is called differentiation. This is called what? Differentiation. समझ में आया ये पॉइंट? So अगर आपको tan theta, if we are getting tan theta as dy by dx, so dy by dx जो ये टर्म होता है इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। Are you getting my point? अच्छा मुझे एक बात बताओ, dy by dx जो है वो छोटे चेंज के लिए है कि बड़े चेंज के लिए है? छोटे चेंज के लिए। छोटे और बहुत छोटे चेंज के लिए, एक्चुअली वो इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटे चेंज के लिए हम जब बात करेंगे। सो dy by dx इंडिकेट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज, है ना। और डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे मिलता क्या है, व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? Tan theta. tan थीटा मतलब क्या? इज इट स्लोप? Yes. गुड। अब बात समझा तुम्हें बेटा ये पॉइंट यहां तक, व्हाट आई एम सेइंग? हाँ सर। वेरी गुड, सुपर। रिमेनिंग स्टूडेंट, आकृति, आर्या? Yes, sir. Great. Yes, sir. Prajakta, Pranav, Sarthak and Sneha, is it clear to all of you? Yes, sir. ध्यान रखना, dy by dx is indicating the very very small change. dy by dx बहुत छोटे चेंज को इंडिकेट करता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, राइट। तो आपसे अगर आज के बाद कोई पूछे कि भाई आप डिफरेंशिएट क्यों करते हो किसी भी क्वांटिटी को, तो आंसर क्या होना चाहिए कि वी डिफरेंशिएट एनी क्वांटिटी टू कैलकुलेट इट्स स्लोप। अगर किसी क्वांटिटी का मुझे स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए वी यूज टू डिफरेंशिएट, है ना। सो आई विल मेक अ स्टेटमेंट हियर दैट डिफरेंशिएशन is a mathematical tool to calculate slope. डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिससे हम स्लोप निकालते हैं, दैट इज dy by dx। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
इज इट क्लियर? हो गया सभी को क्लियर यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड, गुड। जहां भी डाउट रहेगा बेटा बिंदास मुझे पूछो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है। पहली बात, डिफरेंशिएट, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग एनी क्वांटिटी, सो किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन इज स्लोप, राइट? स्लोप क्या होता है? सो इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, अगर आप उस एंगल का टेंजेंट लोगे, tan लोगे, दैट इज कॉल्ड स्लोप। फाइन, समझ में आया सभी को? आर्या क्लियर है बेटा ये पॉइंट यहां तक? आर्या इज इट क्लियर? ओके, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठना चाहिए, आपने मुझे पूछा नहीं, यू मस्ट आस्क कि सर tan थीटा तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस करके, बराबर ना? tan थीटा तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ परपेंडिकुलर बाय बेस करके, तो आप मुझे डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा रहे हो? इसको पढ़ने का क्या यूज है? क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करने के बाद अगर आपको स्लोप ही मिल रहा है, तो स्लोप तो मैं डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा, बरोबर ना? सो अगर मुझे डायरेक्टली tan थीटा आ रहा है, सो व्हाई यू आर टीचिंग अस दिस अनदर टॉपिक डिफरेंशिएशन? अब लॉजिकल बात है ना, स्लोप निकालने का मतलब क्या है बेटा कि वी आर गेटिंग tan थीटा। सो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर tan थीटा तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग परपेंडिकुलर बाय बेस कॉन्सेप्ट, राइट? बट व्हाई यू आर टीचिंग अस दिस डिफरेंशिएशन? ये भी मुझे वापस से वही tan थीटा देने वाला है, तो मैं इसको ऐसे क्यों पढ़ूं? सार्थक, यस और नो? लॉजिकल क्वेश्चन है ना? Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? तुमने मुझे पूछा नहीं है, तो आप बताओ, थिंक ऑन इट। अगर मैं tan थीटा डायरेक्टली निकाल सकता हूं परपेंडिकुलर बाय बेस का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो मुझे ये डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसको पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? मैं बताता हूं लॉजिक इसका क्या है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तब तो भैया आपका बात जम गया, हाँ परपेंडिकुलर बाय बेस कर दिया सर, निकल के आ जाएगा। लेकिन इमेजिन करो हर बार ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं। एवरी टाइम वी आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। ग्राफ ऐसे भी तो दिया जा सकता है आपको, राइट? Yes. अब अगर ग्राफ कर्व के फॉर्म में होगा एंड इफ यू वांट टू गेट द टेंजेंट और स्लोप अगर मुझे निकालना है, सॉरी, तो क्या यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बाय बेस का कॉन्सेप्ट लगा पाऊंगा टू कैलकुलेट द स्लोप? No. No. नहीं, वी कांट यूज हियर। हाँ, स्ट्रेट लाइन के केस में हम यूज कर पाएंगे, वो बराबर है बात और लॉजिकल भी है, लेकिन भैया यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको करने के लिए, स्लोप निकालने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही मैथमेटिकल टूल है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। गेटिंग द पॉइंट सार्थक? सो डिफरेंशिएशन करने के बाद बेटा स्लोप मिलता है, tan थीटा मिलता है, और मुझे पता है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लेकिन फिर भी हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मुझे ग्राफ के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट कैन बी कर्व आल्सो, किसी भी तरीके का हो सकता है। Sir, can you Yes. show an example of this? You want slope for this? Yes, sir. Yes. Okay, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। पहले एक बात मुझे बताओ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होने के बाद भी मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, क्यों पढ़ना पड़ेगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई आप मुझे बताओ ये पॉइंट नंबर 1 पे, आई हैव टेकन एनी पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 पे जो स्लोप होगा वो कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा? Positive. कैसे डिसाइड किया? बोलो, जो आपको समझ में आता है बोलो, कैसे डिसाइड किया कि पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप पॉजिटिव होगा?
रफ टेंजेंट ड्रॉ करके एक्यूट एंगल में। एक्सीलेंट। अभी अगर ग्राफ कर्व के फॉर्म में है तो आप क्या करो, कर्व ग्राफ जहां पे पूछा गया है ना, यू प्लॉट अ टेंजेंट देयर, आप वहां पे एक टेंजेंट बना दो। मान लो मैंने आपसे ये पॉइंट 1 पे पूछा था, आप पॉइंट 1 पे टेंजेंट बना दो। अब अगर मैंने पॉइंट 1 पे टेंजेंट प्लॉट कर दिया, यू टेल मी नाउ कि ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है? Acute angle. एक्यूट। एक्यूट है। सो इफ इट इज एक्यूट हियर, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। Positive. राइट। सो पॉइंट 1 पे स्लोप पॉजिटिव होगा। हम डिनोटिंग स्लोप बाय एम, आपको ऑलरेडी पता है पॉजिटिव है। अच्छा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कैन आई से कि dy बाय dx भी इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव होगा? यस। Yes. Yes. क्योंकि dy बाय dx स्लोप ही तो देता है। सो अगर पॉइंट नंबर 1 पे स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पॉइंट नंबर 1 पे dy बाय dx पॉजिटिव होगा। ओके, नाउ यू डिसाइड ऑन दिस पॉइंट। आप ये जरा पॉइंट 2 पे सोच के देखो, बता जरा पॉइंट 2 पे स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? Sorry. एनालाइज करो, रिसर्च करो, पॉइंट नंबर 2 पे क्या होगा, विल इट बी पॉजिटिव की नेगेटिव स्लोप? Negative. यस, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना। जो भी देखो, पहली बात कभी डरो नहीं और हमेशा डिस्कस करने के मोड में रहो। आर्ग्यूमेंट करो, डिस्कस करो इन अ राइट वे और स्टडी से रिलेटेड। तभी क्या होगा ना, बहुत कॉन्सेप्ट, फिर अब आपको लगेगा कि इससे इंटरेस्टिंग पेपर ही कुछ नहीं है और आईआईटी बहुत नजदीक हो जाएगा। तुम्हें पता है हर साल 13 लाख 14 लाख बच्चे बैठते हैं और सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? उसके पीछे का रीजन क्या है? कि पढ़ने का पैटर्न ही सही नहीं है। एवरी ईयर आई हैव अ स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट आईआईटी में जाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि आई आस्क स्टूडेंट टू डिस्कस, एनालाइज। एनालाइज करो, डिस्कस करो चीजों को। एक बार अगर आप डिस्कशन के मोड में आ जाओगे ना, कभी कभी तो ये भी होगा कि मेरे से बेहतर मेथड तुम निकाल पाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप एनालाइज करोगे, डिस्कस करोगे। ओके, पॉइंट नंबर 2 पे चलो। सो अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे कंसंट्रेट कर रहे हो और अगर आप, तो मुझे यहाँ पे स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट नंबर 2 पे आई प्लॉट अ टेंजेंट। ओके, मैंने टेंजेंट बना दिया पॉइंट 2 पे। अब मुझे बता, पॉइंट 2 पे जो मैंने टेंजेंट बनाया है, ये टेंजेंट एंगल कैसा बना रहा है, एक्यूट एंगल की ऑब्ट्यूज एंगल? ऑब्ट्यूज। Obtuse. ऑब्ट्यूज। ध्यान रखना, मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से सोचना है और ये मेरा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल नहीं लेना है मुझे, ये एंगल लेना है। आई हैव टू टेक, राइट? व्हाई आई हैव टू टेक दिस एंगल? क्योंकि मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में सोचना है। तो ये मेरा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना वो ऑब्ट्यूज एंगल है। सो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब पॉइंट 2 पे जो मेरा स्लोप होगा ये नेगेटिव होगा। और अगर पॉइंट 2 पे स्लोप नेगेटिव है, सो कैन आई से कि dy बाय dx भी नेगेटिव होगा पॉइंट नंबर 2 पे? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं तुमसे पूछता हूं, कम टू दिस पॉइंट नंबर 3। डायग्राम थोड़ा छोटा है बट ठीक, एनालाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 3, बताइए, खुद से सोचो और मुझे बताओ पॉइंट नंबर 3 पे क्या सीन है। 3 is parallel to x-axis. यस, करेक्ट। तो स्लोप कितना होगा? अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पे, इफ आई बी प्लॉटिंग द टेंजेंट, अगर मैं पॉइंट नंबर 3 पर टेंजेंट बनाऊं, तो क्या पॉइंट नंबर 3 का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है? यस। तो अगर पॉइंट 3 का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म कर रहा है? व्हाट इज द एंगल बीइंग फॉर्म्ड हियर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ? सोचो, अगर पॉइंट नंबर 3 पे इफ आई एम प्लॉटिंग द टेंजेंट,
और पॉइंट नंबर 3 का टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 90. 0 डिग्री। 0 डिग्री। 90 कैसा सार्थक? 90 का मतलब हो गया ये, दिस इज 90 डिग्री, राइट? और अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0 डिग्री ना, हाँ, yes. राइट? सो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 0 डिग्री है। अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो tan 0 का वैल्यू 0, हमने चार्ट फॉर्म किया था ना, tan 0 इज 0 एंड वी नो m इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा आपका 0 डिग्री है, इंप्लाइज m विल बी इक्वल टू व्हाट? tan 0, और tan 0 का मतलब 0। तो क्या इस पॉइंट नंबर 3 पे जो मेरा स्लोप होगा वो 0 होगा? और अगर मेरा स्लोप 0 हो गया तो क्या dy by dx भी इस पॉइंट पे 0 होगा? Yes, sir. राइट? इसका मतलब अब एक समझ में आया बात? अगर आप पॉइंट 3 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो पॉइंट 3 पे जो अगर मैंने टेंजेंट बनाया है दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर पॉइंट 3 का टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है इंप्लाइज कि वो एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और अगर एंगल 0 डिग्री का फॉर्म कर रहा है इंप्लाइज कि tan 0 is 0, therefore dy by dx will be 0 at point number 3. Is it fine? Yes, sir. Good. Now go with this point. Point number 4. खुद से सोचो, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। पॉइंट 4 पे सोचिए। पैरेलल टू हाँ, वेरी गुड, Parallel to x-axis. बिल्कुल सही। सो अगर मैं पॉइंट 3 पे इफ आई एम प्लॉटिंग द टेंजेंट, सो टेंजेंट एज पॉइंट, सॉरी 3 नहीं 4, सो पॉइंट 4 पे भी अगर आप टेंजेंट बनाओगे सो पॉइंट 4 का टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर पॉइंट 4 का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0 degree. 0 डिग्री। अगर एंगल 0 फॉर्म कर रहा है इसका मतलब पॉइंट 4 पे भी जो स्लोप होगा वो 0 होगा, क्योंकि tan 0 is 0, और अगर स्लोप 0 हो गया तो कैन आई से कि dy by dx 0 होगा। Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं इसके ऊपर बाद में और चर्चा करूंगा, अभी के लिए बस इतना ही इसको देखेंगे। तो मेरा ये बताने का पॉइंट क्या था कि भाई डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट आफ्टर डिफरेंशिएशन? स्लोप, है ना? स्लोप क्या होता है? इट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसके बाद tan थीटा वो देगा एक्चुअली हमें, और वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। लेकिन इसके बाद भी मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम वो कंसेप्ट सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे लगा सकते हैं। कर्व ग्राफ के केस में आपको टेंजेंट बना के देखना पड़ेगा। आर्या क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? Yes, sir. वेरी गुड। प्रणव, सार्थक, निकिता, प्राजक्ता, क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस। Yes, sir. ठीक। खुद से डायग्राम बनाओ और खुद से जो लिखने का लिख लो। I'll give you 1 minute to write. My suggestion is कि फिजिक्स का नोटबुक सेपरेट करना और नोटबुक प्रॉपर्ली मेंटेन करो एवरीडे का, बिफोर वी कम टू ऑफलाइन।
Okay, done. Shall I move ahead? Yes, sir. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी ग्राफ में मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर। देखिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद मुझे स्लोप मिलता है, और जो पहला फॉर्मूला हमें इसमें डिफरेंशिएशन में डील करना है इज, एंड वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मूला जो मुझे फिजिक्स में यूज आएगा, दिस इज dx रेज टू पावर n ओवर dx। ध्यान रखना, dx रेज टू पावर n ओवर dx, वेयर n कैन बी एनी नंबर 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। So dx raised to power n by dx is what? n into x raised to power n minus 1. इस फॉर्मूला का प्रूफ you will get in mathematics. So we are not going for the proof, क्योंकि इसके लिए आपको फर्स्ट रूल चाहिए लिमिट्स का, डेरिवेटिव का। सो वो हमें अभी पढ़ना नहीं फिजिक्स में, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला इज dx raised to power n, यहाँ पे x है तो नीचे भी मुझे x चाहिए, dx raised to power n by dx is n into x raised to power n minus 1. Here n can be any number 1 2 3 4 5, 1 by 2, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5, कुछ भी हो सकता है। So dx raised to power n by dx is n into x raised to power n minus 1. इसका प्रूफ है, but that proof is there in mathematics, so we are not going for the proof in physics. ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जिसके ऊपर हमें काम करना है। इज इट क्लियर? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी टेकिंग वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। मान लो मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, मान लेते हैं। सो आई एम सेइंग कि बेटा मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड dy बाय dx। सो मैंने आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देकर रखा है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे dy बाय dx बता दो, यानी y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x बता दो या स्लोप बता दो। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, सी आप क्या करोगे, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू y के जगह पे एक्स स्क्वायर आई कैन प्लेस बाय dx। अगर आप ये फॉर्मूला से इसको कंपेयर करो, सो n की जगह पे वी आर हैविंग 2 हियर, राइट? सो वी कैन राइट सिंपली दिस एज dy बाय dx इज इक्वल टू 2 into x रेज टू पावर 2 minus 1। देखो यहाँ पे n है ना, n की जगह पे वी आर हैविंग 2 हियर, सो n into x raised to power n minus 1. So 2 into x raised to power 2 minus 1, and 2 minus 1 is 1. So therefore what we are having, क्या मुझे मिलेगा बेटा, dy by dx is 2x raised to power 1 and implies that dy by dx will be equal to 2x। खत्म। समझ में आया फॉर्मूला कैसे यूज किया? So can you please repeat that? या द फॉर्मूला सेज, बेटा क्या कहता है फॉर्मूला, dx raised to power n, x raised to power n by dx is n into x raised to power dx raised to power n by dx is n into x raised to power n minus 1, n minus 1। सेम फॉर्मूला यू आर यूजिंग हियर। अभी यहाँ पे n की जगह पे सिर्फ मेरे पास 2 है, सो dx स्क्वायर बाय dx, देखो n की जगह पे 2 है, सो n यहाँ था, so 2 into x raised to power 2 minus 1, n minus 1, so 2 minus 1, right? So what we are getting, beta? So dx square by dx will be equal to 2, x raised to power 2 minus 1 is 1, so that is 2x। Simple। Clear बेटा? अभी समझ में आया कैसे किया? Yes. हाँ, just we have to compare with that formula। उस फॉर्मूला से आपको बस कंपेयर करना है। यहाँ पे n की जगह पे we are having 2, so वहां पे फॉर्मूला था n into x raised to power n minus 1, so here it will be 2 into x raised to power 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, so that is 2x। वेरी सिंपल। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका आंसर आपको मैथ्स में मिलेगा, सचिन सर देंगे डेरिवेटिव चैप्टर्स में, बट आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट प्रूफ, हमें सिर्फ फॉर्मूला पे काम करना है फॉर फिजिक्स पर्पस।
इज इट क्लियर? सार्थक Yes. समझ में आया बेटा फॉर्मूला ये प्रॉपर्ली? Yes, sir. चलो एक मुझे करके बता दो. आई एम सेइंग y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड dy by dx. करके बताइए जरा. यस निकिता, एक्सलेंट. देखिए कैसे करेंगे हम लोग. वी हैव टू फाइंड dy by dx. सो यहाँ पे y के जगह पे x प्लेस करना है. सो dx क्यूब by dx. सो हियर इंस्टेड ऑफ n वी आर हैविंग 3 हियर. नहीं सार्थक गलत हो गया. निकिता इसका राइट है, तुम्हारा गलत है. सो यहाँ पे n जैसा था, n की जगह पे वी आर हैविंग 3 हियर. सो व्हाट विल बी गेटिंग, क्या मिलेगा मुझे बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला dy by dx का. n 3 था, 3 into x raised to power 3 minus 1. यहाँ पे n की जगह पे 3 है, right? So what I'm getting is dy by dx is equal to 3 into x raised to power 3 minus 1 is 2, right? So simply हमें क्या मिल रहा है कि dy by dx is equal to what? 3x square. Is it clear? सार्थक समझ में आया बेटा अभी क्या गलती हुआ? Yes, sir. Okay. दिशा, got the answer? Yes, sir. Okay, great. मुझे बताओ, गलत सही फर्क नहीं पड़ता, बट आप मुझे बताइए आंसर. Abha and Arya, is it clear to both of you? Nikita Yes, बताओ. sir. Okay. Yes, sir. प्राजक्ता, स्नेहा एंड युवराज, समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. माय सजेशन इज कि गलत सही फर्क नहीं पड़ता, गलत होना इज नॉट अ बिग डील. आप मुझे आंसर्स बताओ बस, तो मुझे भी समझ में आएगा कहाँ पे क्या गलती हो रहा है. ओके, विल गो अहेड. y इज इक्वल टू x रेज टू पावर, एक और सिंपल सा पूछता हूँ 5. आपसे पूछ रहा हूँ मैं फाइंड dy by dx. चलिए. हाँ यस निकिता, वेरी गुड. गुड, निकिता का सही है, बाकी लोग भी करो भाई. गुड, आवा करेक्ट. जस्ट सेम फॉर्मूला वी हैव टू यूज, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे. देखिए अगेन व्हाट वी आर हैविंग इज dy by dx. यहाँ पे y की जगह पे x रेज टू पावर 5 था. सो dx रेज टू पावर 5 by dx implies that dy by dx is 5 into x raised to power 5 minus 1. This is n into x raised to power n minus 1. So same way में 5 minus 1. So therefore we are having, yes दिशा बोलो बेटा. This is 5 into x raised to power 4. This is the correct answer.
आ गया था सभी का? Yes, ना? sir. वेरी गुड. कंसेप्ट फॉर्मूला क्या यूज किया? dx रेस्ट टू पावर n by dx is n into x रेस्ट टू पावर n minus 1. चलिए टेक सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम की थोड़ा सा मॉडिफाई करूं. इसी टाइप का और ले लो कि सारा मॉडिफाई लिटिल बिट. बोलो, इसी टाइप का क्वेश्चन ले लो कि थोड़ा मॉडिफाई करूं. Sir, thoda modify. चलिए, आई एम सेइंग कि y is equal to x raised to power 3 by 2. So I am asking you to find the value of dy by dx. Sir, Hmm? so can we convert that fraction into decimal? No, it's better आप ऐसे ही कर लो. Yeah, if you want you can convert. बिल्कुल कर सकते हो. नहीं भी कन्वर्ट करोगे तो चलेगा. Chalo, I'll do this. So the one is you can convert this into decimal, so it will become easy. But मैं नहीं करता हूँ convert इसको. That is dy by dx. So y की जगह पे you can place dx raised to power 3 by 2 over dx. So basically यहाँ पे n का वैल्यू ये हो गया 3 by 2. N here is 3 by 2. So if I'll be using the same formula, so dy by dx is 3 by 2 x raised to power 3 by 2 minus 1. हाँ, yes, correct है निकिता. Right. So 3 by 2 n की जगह पे we are having 3 by 2 here. So 3 by 2 x raised to power 3 by 2 minus 1. So क्या मिलेगा आपको? That dy by dx is 3 by 2 x raised to power, अगर आप LCM ले लोगे 3 minus 2 by 2. I'm just taking the LCM. So this is 1 by 2 it will be. So dy by dx is equal to 3 by 2 x raised to power 1 by 2. The final answer, or 0.5 if you want, you can say. So 1.5 into x raised to power 0.5 वो भी सही आंसर होगा. Or if you want, you can write it this way. Is it clear? Yes. Okay, good. सार्थक आंसर आया था बेटा इसका? Yes, sir. I'll make one more. एक दो और प्रैक्टिस करो फिर आगे और इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. y is equal to we are having root x. Why we are having root x? आपसे मैं पूछ रहा हूँ find value of dy by dx.
I answer y is equal to root x का. See, we are having y is equal to root x, right? So am I audible? आवाज आ रहा है सभी को?